Hello beta, how are you all? Hope everyone will be fine. So beta, as you know, we are doing the chapter number 1 of your chemistry portion, that is some basic concepts of chemistry. And in this, we have covered some of the topics like scope and importance of chemistry, matter and its classification, properties of matter and their measurement. ठीक बेटा, and the topic that we are studying now is uncertainty in measurement. So जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया ही है कि जितनी भी साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस होती हैं, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस होती हैं, they are all uncertain in nature. So scientists try their best to make the observations certain, and they opted different ideas for making the observations, for making the scientific experimental values or experimental data certain. So for among those ideas we already discussed the two, that is one is scientific notation that we have discussed in the last video, and the previous video we discussed about the accuracy and precision, the second which is used to make the experimental observations certain in nature. Now the third one that we are going to discuss is significant figures. Significant figures. बेटा ये कुछ टॉपिक्स हैं, these are the topics which will you also study in the physics. आप लोग फिजिक्स में भी इस चीज को स्टडी करोगे, इन्हीं टॉपिक्स को, जैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, ये कॉमन से टॉपिक्स हैं थोड़े थोड़े, ठीक है। लेकिन बात वही है कि वहां पे आप फिजिक्स से रिलेटेड स्टेटमेंट्स स्टडी करोगे, यहाँ पे हम लोग केमिस्ट्री से रिलेटेड स्टेटमेंट्स डिस्कस करेंगे, बट ओवरऑल अगर वैसे देखा जाए, मीनिंग ऑफ द टॉपिक देखा जाए, दैट इज यूनिक, वो एक ही है, दोनों केसेस में एक ही रहता है। सो बेटा सिग्निफिकेंट फिगर्स के केस में क्या है, इट इज अनदर वे ऑफ removing the uncertainty of the experimental observations. Uncertainty को remove out करने के लिए significant figures एक another method लिया जाता है, या uncertainty को elaborate करने के लिए आप कह सकते हो, ठीक है। होता क्या है ये, the uncertainty in experiment or the calculated values is indicated by mentioning the number of significant figures. किसी भी एक्सपेरिमेंटल डाटा या एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन जो हम लोग ऑब्टेन करते हैं थ्रू आवर एक्सपेरिमेंटेशंस, ठीक है, व्हिच आर कैरिड आउट इन द लैब्स, सो उन एक्सपेरिमेंटेशंस में अनसर्टेनिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए, दैट इज द calculated values is indicated by mentioning the number of significant figures. The uncertainty in the experimental or the calculated values, जो experimental और जो calculations कौन सी, जो आपने experimental observations ली, उनके बाद जो वहां पे calculations आप लोगों ने की, उनमें जो values आपकी obtained हुई, उनकी uncertainty को इंडिकेट किया जाता है by mentioning the number of significant figures. By mentioning the significant figures means to say आप ये बोल सकते हो कि वहां पे हम जो रिजल्ट हमारे पास आ रहा है, उस रिजल्ट को हम जब रिप्रेजेंट करते हैं तो वो किया जाता है in terms of significant figures, in terms of number of significant figures के टर्म्स में हम उस रिजल्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये significant figures होते क्या हैं? So significant figures are simply the number of digits present in a particular observation, a particular number, the total number of digits present in a observation, in an observation or in a number, including the last doubtful digit, that is the meaningful digits which are known with certainty, the meaningful digits which are known with certainty, or you can say it is equal to the total number of certain digits and the last uncertain digit. अगर सिंपल सी लैंग्वेज में हमने बताना है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, तो आप ये बोल सकते हो these are actually the number of digits
present in a observation या present in an experimental value including last doubtful or uncertain digit। अब आप बोलोगे सर ये क्या बोले जा रहे हैं, सर्टन, अनसर्टन, डाउटफुल। तो सुनिए ध्यान से जरा, जब भी हम कोई साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन लेते हैं, आप कोई रीडिंग ले रहे हो, कोई भी, मान लीजिए टेंटेटिवली आप लेंथ मेजर कर रहे हो बाय यूजिंग द मीटर स्केल, ठीक है, तो जो आपके पास लेंथ ऑब्टेन हुई, समझ रहे हो, मीटर सेंटीमीटर, मान लीजिए आपके पास आ गई 5.7 सेंटीमीटर ले ली, 10.5 सेंटीमीटर ले ली, ठीक है, 12.3 ले ली, समझ रहे हो, मान लीजिए आपने ले ली 12.3 सेंटीमीटर, ये आपकी लेंथ आ गई। ये भी तो एक्सपेरिमेंट ही होता है, मेजरमेंट ऑफ द लेंथ ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, समझ रहे हो, दिस इज आल्सो एन एक्सपेरिमेंट। तो आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आ गई 12.3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस ऑब्जर्वेशन में दो तरह के डिजिट्स पाए जाते हैं बेटा, टू टाइप्स ऑफ डिजिट्स आर देयर, वन certain means which are known with certainty, means fixed, non changeable, जिनकी चेंज होने की जो फ्रैक्शन है दैट इज वेरी वेरी लो, मतलब एक सेम एक्सपेरिमेंट में इनके चेंज होने का चांस नहीं है, ठीक है। और दूसरा होता है अनसर्टन डिजिट। जो अनसर्टन डिजिट होता है वो बेटा होता है लास्ट डिजिट आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद लास्ट डिजिट जो प्रेजेंट होगा आफ्टर डेसिमल, नॉट बिफोर, आफ्टर डेसिमल जो लास्ट डिजिट होगा दैट इज नोन एज अनसर्टन डिजिट, और उसको हम बोलते हैं डाउटफुल डिजिट, डाउटफुल डिजिट। तो इस ऑब्जर्वेशन में आपके पास जो 12 है, ये 12, ये तो हो गया सर्टन, सर्टन डिजिट्स आ गई है, ठीक है बेटा। लेकिन ये जो 3 है आफ्टर द डेसिमल, डेसिमल के बाद वाले टर्म, ये जो 3 है इसको बोलते हैं अनसर्टन और डाउटफुल, समझे? क्यों डाउटफुल बोलते हैं इसको भाई? फिर अगेन कल वाली वीडियो के अकॉर्डिंगली हम मान लीजिए 2 स्टूडेंट्स को पिकअप करते हैं, ठीक है, वही सेम एग्जांपल, आपको एक स्केल प्रोवाइड करवा दिया गया दोनों, ठीक है, दोनों स्टूडेंट्स को एक अपरेटस दे दिया गया, कोई भी ऑब्जेक्ट दे दिया गया, आपको बोला गया कि इसकी लेंथ मेजर करनी है आपने, ठीक है। अब एक स्टूडेंट ने जब लेंथ मेजर की अपने स्केल के साथ, ऑब्जेक्ट एक ही है, याद रखना है, ऑब्जेक्ट इज सेम, एक ही ऑब्जेक्ट, पहले फर्स्ट स्टूडेंट 1 ने लेंथ मेजर की उस ऑब्जेक्ट की, वो आ गई उसकी मान लीजिए 11.3 सेंटीमीटर, आप कोई भी ले सकते हो, ठीक है, 11.3, 11.5, 10.7 कुछ भी ले लो, एनीथिंग। एक सेकंड स्टूडेंट आया, मतलब मैंने उसी ऑब्जेक्ट को एक सेकंड स्टूडेंट को दे दिया, एंड आई टोल्ड हिम टू मेजर द लेंथ, I asked him to measure the length of that instrument, that object, and his result come out to be L is equal to 11.4 centimeter. Means to say, एक स्टूडेंट ने उस ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर की 11.3 सेंटीमीटर, दूसरे स्टूडेंट ने उस ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर की 11.4 सेंटीमीटर, समझ रहे हो? तो दोनों केसेस में जो वेरी कर रही है, जो वेरिएशन आ रही है वो क्या आ रही है, डेसिमल टर्म वेरी कर रही है। यहाँ पे क्या था 11.3, यहाँ पे क्या आ गया 11.4, मतलब फिर डाउटफुल डिजिट कौन सा होगा, द लास्ट डिजिट आफ्टर द डेसिमल, आफ्टर द डेसिमल द लास्ट डिजिट, उसको बोलेंगे क्या, डाउटफुल डिजिट और अनसर्टेन डिजिट। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रेजेंट इन एन ऑब्जर्वेशन or in a number are actually the total number of digits including last doubtful digit. The total number of digits which are known with certainty including the last doubtful digit present in that number provides you the total number of
of significant figures present in that particular observation or that particular number। ठीक बेटा, हो जाएगा या नहीं? तो इस तरह से ये सिग्निफिकेंट फिगर्स टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया गया था, समझ रहे हो? अनसर्टेनिटी को चेक करने के लिए, टू चेक द अनसर्टेनिटी। क्या बोल गए हैं? द अनसर्टेनिटी इन एन एक्सपेरिमेंट or the calculated values is indicated by mentioning the number of significant figures। means uncertainty को indicate किया जाता है कैसे? by mentioning the number of significant figures, significant figures को mention करके, समझ रहे हो? so significant figures क्या हुए, क्या होते हैं? the meaningful digits which are known with certainty, total meaningful digits which are known with certainty including doubtful digit। टोटल करने हैं सारे के सारे लास्ट डिजिट तक, ठीक है? that is it is equal to the total number of certain digits and the last uncertain digit। समझ रहे हो? जो फर्स्ट डेसिमल से पहले वाली टर्म होती है बिफोर डेसिमल, the number of digits present before decimal are always certain or fixed, but after decimal the number present after decimal is known as uncertain number, or the digits are known as uncertain digits or doubtful digits। so simply significant figures are the number of digits, total number of digits present in an observation or present in a number including last doubtful digit। ठीक है बेटा, ये वर्मार्क में कोई बेटा क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय सिग्निफिकेंट फिगर्स, समझ रहे हो? नाउ हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये तो चलो हो गया, डेफिनेशन होगी। नाउ हाउ कैन वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रेजेंट इन एन ऑब्जर्वेशन। एक ऑब्जर्वेशन में कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं हमें कैसे पता चलेगा? सो उसके लिए बेटा सम रूल्स आर डेजिग्नेटेड, कुछ रूल्स बनाए गए हैं, रूल्स फॉर्म्ड आउट किए गए हैं, framed out किए गए हैं, सॉरी, rules are framed out for determining the number of significant figures present in a number, या present in an observation or present in an experimental value। so लिखेंगे rules। topic is rules for determining the number of significant figures, number of significant figures। clear beta? now the very first rule, rule 1, बड़े इजी से है पुत्र। सबसे फर्स्ट रूल बोलता है all the non-zero digits, all the non-zero digits present in a number are considered as significant or present in an experimental value or an observation are significant। आपकी ऑब्जर्वेशन में जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे, नॉन जीरो मीन्स टू से 1 to 9, नॉन जीरो, जीरो नहीं होनी चाहिए, नॉन जीरो होने चाहिए, वो सारे के सारे क्या होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट होंगे। दैट इज ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ऑल नॉन जीरो digits are significant। फॉर एग्जाम्पल कोई भी लीजिए एनी नॉन जीरो नंबर, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल कोई भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2.57, 28.34, 2.5, 232.57, सारे के सारे क्या है? नॉन जीरो है। हैज फर्स्ट केस में कितने हैं? 1 2 3, 3
सेकंड में 1 2 3 4, थर्ड में 2 एंड 1 2 3 4 5 significant figures respectively जरूर लिखना है। रेस्पेक्टिवली मतलब जो फर्स्ट वाला है वो फर्स्ट को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, दैट इज 3 2.57। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं 3, तो 3 हो गए सिग्निफिकेंट डिजिट्स। सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए 3। दूसरा 28.34 कितने हैं 4 लगा दिए। डिजिट्स काउंट करने हैं बेटा, टोटल डिजिट्स काउंट कर लेने हैं, सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट जितने भी प्रेजेंट होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे सिग्निफिकेंट मानेंगे उनको हम, समझ रहे हो, वो नॉन सिग्निफिकेंट नहीं होगा कोई भी। क्लियर। थर्ड में कितने आ गए 2 एंड लास्ट में 3 + 2 5 आ गए। ठीक है बेटा, ये हो गया फर्स्ट रूल। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल ऑल नॉन जीरो डिजिट्स प्रेजेंट इन एन ऑब्जर्वेशन और प्रेजेंट इन अ नंबर आर कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट। ठीक। नाउ रूल 2, सेकंड रूल क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू रूल सेकंड कहता है द जीरोस प्रीसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। ध्यान से देख लीजिए, द जीरोस प्रीसीडिंग the first non-zero digit are insignificant या are not significant। नॉन सिग्निफिकेंट भी कह सकते हो, इनसिग्निफिकेंट भी कह सकते हो, नॉट सिग्निफिकेंट भी कह सकते हो। यू कैन से एनीथिंग। क्लियर बेटा। मींस फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो होगा, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से पहले बिफोर जितनी भी जीरोस होंगी, ऑल द जीरोस प्रेजेंट बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर कंसिडर्ड एज इनसिग्निफिकेंट और नॉट सिग्निफिकेंट। उसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे बेटा। फॉर एग्जांपल कोई नंबर है आपके पास 0.05, अब फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट यहां पे कौन सा है 5 से पहले क्या है जीरोस है, तो इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा सिर्फ ओनली 1 होगा। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए 1 हैज ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर। समझ रहे हो बेटा। सिमिलरली सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं 0.527 हैज फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से पहले क्या जीरो है, नॉन सिग्निफिकेंट कंसीडर करेंगे, इसको काउंट नहीं करेंगे, सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट नहीं करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं काउंट करेंगे। क्या करेंगे 5 2 एंड 7 को काउंट करेंगे, तो क्या बन जाएंगे हैज 3 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। एस मींस सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है बेटा। इस तरह से आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, कंडीशन ये है कि नॉन जीरो डिजिट से पहले अगर सारी की सारी जीरोस हैं, ऑल द जीरोस, इफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट प्रीसीड्स बाय जीरोस, मतलब पहले नॉन जीरो डिजिट से पहले अगर सिर्फ जीरोस है तो वो नॉन सिग्निफिकेंट काउंट होंगी, मतलब उसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। दिस इज द सेकंड रूल। ठीक है बेटू। नाउ थर्ड रूल, रूल 3। थर्ड रूल कहता है कि अगर if the zeros are present in between two non-zero digits, that is zeros between two non-zero digits, zeros between two
non-zero digits are considered as significant. उनको क्या कंसीडर करके चलते हैं? सिग्निफिकेंट कंसीडर करके चलते हैं. ठीक है, zeros between two non-zero digits are significant. पता तो चल ही गया होगा अब कि अगर जीरोस नॉन जीरो डिजिट के बीच में प्रेजेंट है, बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, then those zeros are considered as significant figures. तो उनको हम कंसीडर करके चलते हैं किसमें? सिग्निफिकेंट फिगर्स में बेटो. इसमें कंसीडर करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर में, मान के चलते हैं कब? अगर आपकी जीरो जो है वो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है, बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स. मींस टू से एग्जांपल के तौर पे अगर हम कंसीडर करें, फॉर एग्जांपल 2.021, अब जीरो सेंटर में आ गई, आइदर साइड्स के ऊपर क्या है? नॉन जीरो डिजिट्स है, बीच में है जीरो. तो ये जीरो जो होगी वो काउंट होगी किसमें? सिग्निफिकेंट डिजिट्स में, सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट करेंगे इस जीरो को. ठीक बेटू, मींस 1 2 3 4 हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. ठीक बेटू, क्लियर है ये चीज? The zeros present between two non-zero digits, between two non-zero digits are considered as significant. Got it? Secondly, एक और एग्जांपल ले लीजिए, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, एनी वन. कंडीशन ये है कि आपकी जीरोस नॉन जीरो डिजिट के सेंटर में होनी चाहिए, मतलब बीच में होनी चाहिए. जैसे 1.001 हैज फर्स्ट भी नॉन जीरो डिजिट है, लास्ट भी नॉन जीरो डिजिट है. ठीक है, तो इस केस में फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, लास्ट भी नॉन जीरो डिजिट, in between two zeros, and these two zeros are considered as significant figures. So therefore you can say has कितने? 1 2 3 4 4 significant figures. Clear बेटा? You can take one more example. 9.0507 ये कंसीडर करके चल पड़ो. नॉन जीरो डिजिट्स के जितने भी जीरोस हैं वो नॉन जीरो डिजिट्स के बिटवीन में हैं. मींस द जीरोस आर प्रेजेंट बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स, बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स. सो हेंस these zeros are considered as significant figures. Means to say इस केस में कितने आ जाएंगे? has 1 2 3 4 5 6 significant figures. ठीक है बेटा, दिस इज रूल थर्ड. ये आपका रूल थर्ड. क्लियर? नाउ रूल 4. रूल 4 क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू रूल 4, अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर है which is in which the zeros are present after the non-zero digits. The zeros are present after the non-zero digits, whether after the decimal or before the decimal. चाहे वो before the decimal है या after the decimal है, लेकिन जो zeros है वो कहाँ पे present है? After the non-zero digit. After the non-zero digit, and that is all the zeros will considered as significant figures. उसमें हर एक जीरो जो नॉन जीरो डिजिट के बाद में प्रेजेंट होगी, आफ्टर, those zeros are considered as significant figures. So you can write the zeros at the end or right of a number are significant. The zeros, rule 4, the zeros at the end or right of a number are significant provided they are on the right side of decimal point. Provided they are right side on the decimal point. Provided
they are on the right side of the decimal point. For example आप लिख सकते हो यहाँ पे जैसे 0.200 ये है, इसमें ये नॉन जीरो डिजिट के बाद वाली जीरो जो है ये कंसीडर की जाएंगी एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। बेटा क्या कंसीडर की जाएंगी? एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। दैट इज हैज कितने आ गए इसमें? 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक बेटू, हो जाएगा। सिमिलरली बट अगर मान लीजिए ये जीरोस टर्मिनल जीरोस है, टर्मिनल जीरोस मींस जैसे इसमें एक आधा एग्जांपल और लिखनी है तो लिख सकते हो आप, कोई भी एग्जांपल लिख लीजिए। सेकंड एग्जांपल लिख लो 23.00 ऐसे भी लिख सकते हो। इसकी भी कितनी हो जाएंगी? हैज 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे इसमें। मतलब आपकी जीरोस आफ्टर डेसिमल एंड आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होनी चाहिए। That is zeros at the end or right of a number are significant, and or right of a number are significant provided they are on the right side of the decimal point. They are on the right side of the decimal point. ठीक है बेटू? Now लेकिन इसमें एक कंडीशन है, कहता but if otherwise the terminal zeros are not significant. If otherwise the terminal zeros are not significant, if there is no decimal point, अगर decimal point नहीं है कोई भी, तो उस केस में टर्मिनल जीरोस को हम सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इसी के साथ है ये, फोर्थ रूल के साथ ही है। बट इफ अदरवाइज the terminal zeros are not significant कब? if there is no decimal point, if there is no decimal point। जैसे फॉर एग्जांपल 100 की बात करते हैं, 100 कंप्लीट। फॉर एग्जांपल 100 देयर इज नो डेसिमल, कोई डेसिमल नहीं है, बट यहाँ पे जीरो नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड पे है लेकिन डेसिमल नहीं है, तो इस केस में ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगी। दीज जीरोस विल नॉट कंसीडर्ड एज सिग्निफिकेंट। तो इस केस में क्या करेंगे? इस केस में हैज ओनली वन सिग्निफिकेंट फिगर, has only one significant figure, एक ही होगा इस केस में। बट लेकिन कह रहा है 100 हैज, अगर मान लो 100 पॉइंट लगा देते हैं, हम डेसिमल लगा देते हैं, बट 100 पॉइंट लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, 100 डेसिमल लगा दिया, तो इस केस में अब ये जीरो सारी काउंट हो जाएंगी। देन 100 पॉइंट हैज, 100 डेसिमल हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, has 3 significant figures and 100.0 has कितनी हो जाएंगी? 3 ये एक ये 4, तो इसमें केस में 4 हो जाएंगी, 4 significant figures। क्लियर है बेटा? ये रूल थोड़ा सा ध्यान से करना है। मेन रूल में क्या बोल रहा है कि आफ्टर द डेसिमल जितनी भी जीरोस होंगी वो सारी की सारी सिग्निफिकेंट कंसीडर करेंगे। राइट साइड ऑफ द नंबर, राइट जीरोस प्रेजेंट राइट साइड ऑफ अ नंबर और आफ्टर द डेसिमल, राइट साइड ऑफ अ नंबर और आफ्टर द डेसिमल, कंडीशन प्रोवाइड करवा दी आफ्टर द डेसिमल, मतलब डेसिमल के बाद वाली जीरोस, समझ रहे हो? तो वो क्या होंगी? सिग्निफिकेंट होंगी। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका नंबर, अगर आपकी ऑब्जर्वेशन वैल्यू जो है अगर वो डेसिमल टर्म्स में है
तो उसमें जितनी जीरो होंगी राइट साइड पे लगी हुई वो सारी की सारी सिग्निफिकेंट काउंट होंगी। लेकिन कंडीशन ये है कि आपकी ऑब्जर्वेशन जो है वो डेसिमल फॉर्म में होनी चाहिए। अगर वो डेसिमल फॉर्म में नहीं है, अगर कंप्लीट नंबर आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, कंप्लीट जैसे कि 100 कंप्लीट विदाउट एनी डेसिमल, तो उस केस में सिर्फ नॉन जीरो डिजिट जितने होंगे वही कंसीडर किए जाएंगे एज सिग्निफिकेंट। जीरोस कंसीडर नहीं होंगी। जीरोस कब होनी है? जब डेसिमल प्रेजेंट होगा, जब आपकी ऑब्जर्वेशन में आपके नंबर में क्या होगा, डेसिमल जब प्रेजेंट होगा, उस केस में हम लोग वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। ठीक है बेटो, ये चीज है, हो जाएगा क्लियर। इसको एक और तरह से अंडरस्टैंड करने के लिए, मतलब रिप्रेजेंट करने के लिए एक मेथड और है कि आपके पास अगर इस तरह का कोई नंबर है तो उसको एक्सपोनेंशियल टर्म, दैट इज साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दो। किसमें कन्वर्ट करना है? साइंटिफिक नोटेशन में। जैसे 100 को हम कैसे लिख सकते हैं? 100 को कैसे लिखेंगे? 100 को हम लिखेंगे 1 into 10⁻²। ठीक, तो बेटा ये क्या, इस केस में जब हम साइंटिफिक नोटेशन की बात करते हैं तो याद रखना है, इट इज आल्सो अ रूल दैट इन साइंटिफिक नोटेशन द एक्सपोनेंट टर्म, चाहे वो जितनी मर्जी बड़ी है, एक्सपोनेंट टर्म इज नॉट कंसीडर्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर, या never considered as significant figure. The exponent of a scientific notation can never be considered as a significant figure. Only जो नंबर है, डिजिट नंबर जिसको हम बोलते हैं, सिर्फ डिजिट नंबर ही कंसिडर किया जाएगा किसमें? साइंटिफिक नोटेशन में एज सिग्निफिकेंट नंबर, एज सिग्निफिकेंट फिगर। समझ रहे हो? और डिजिट नंबर को, डिजिट नंबर में से सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालने के लिए जो रूल्स है वो वही है, सारे के सारे वही रिपीट होंगे जो अभी आप लोगों ने किए हैं। साइंटिफिक नोटेशन में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट निकालने के लिए द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रेजेंट इन अ साइंटिफिक नोटेशन इज कंसिडर्ड एज द number which is present in the number of digits present in digit number are considered as significant figures according to the previous rules. But in scientific notation, the exponent term will not considered as a significant figure. Simple सी लैंग्वेज में आपने ये बोल सकते हो कि साइंटिफिक नोटेशन में जो डिजिट नंबर होता है, जो कैपिटल एन वैल्यू होती है, ये होता है ना आपका साइंटिफिक नोटेशन, तो सिर्फ ये जो एन वैल्यू है यही आपको प्रोवाइड करवाएगी सिग्निफिकेंट फिगर्स, और जो एक्सपोनेंट है ये हमेशा नॉन सिग्निफिकेंट रहता है बेटा। क्या रहता है? नॉन सिग्निफिकेंट, ऑलवेज ये हमेशा नॉन सिग्निफिकेंट ही रहेगा। सिर्फ ये एन वैल्यू सिग्निफिकेंट फिगर प्रोवाइड करवाएगी और उसके लिए रूल्स, यही वाले रूल्स फॉलो करोगे इस एन में से नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर निकालने के लिए। तो हम थे यहाँ पे, जैसे 100 को हम बोल रहे हैं 100 हैज ओनली वन सिग्निफिकेंट फिगर। क्यों? क्योंकि जब 100 को हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखा तो क्या बन गया? 1 into 10⁻² लिख सकते हैं। तो 1 सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट, नॉन जीरो डिजिट क्या है? एक ही है, सिंपल, तो इसलिए एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा इस केस में। ठीक है बेटो, ये आपके पास रूल है। ठीक है, लेकिन जब आपने डेसिमल लगा दिया, जब आपने डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, उस केस में जितनी भी जीरोस लगाओगे वो सारी की सारी आपकी क्या हो जाएंगी? सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट होंगी। जैसे 100.0 है ना, ये इसमें कितने आ गए? 4। तो इसी चीज को 100.0 को हम कैसे लिख सकते हैं? 100.0 को बेटा हम लिख सकते हैं 1.0 into 10⁻², लिख सकते हैं ना। 100.0 को हम क्या लिखेंगे? 1.0 into 10⁻²। तो इस केस में ये डेसिमल टर्म आ गई, तो इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए। ठीक है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें क्या आ गया? कोई भी नहीं है। इसी चीज को हम 1.0 को और आगे लिख सकते हैं, 1.00 मान लो, लिख लिया, into 10⁻²। ठीक है, तो अब सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 3, 1 2 3।
3 significant figures. मतलब means to say once you have a decimal term, at that stage all the zeros present after the decimal or after towards the right side of the non-zero digit are considered as significant figures. ठीक है बेटो, this is your fourth rule. Now the fifth rule, the counting numbers of objects. Rule number 5. रूल नंबर 5 क्या बोलता है, जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन काउंटिंग पे भी डिपेंड करती है ना, याद रखना है जो काउंटेबल नंबर्स होते हैं, काउंटेबल ऑब्जर्वेशंस होती हैं, वो हमेशा सर्टेन होती हैं, वो कभी अनसर्टेन नहीं होती। ठीक है, जैसे आपको बोल दिया हाउ मेनी बेंचेस आर देयर इन अ क्लास, द ऑब्जर्वेशन डिपेंड्स अपॉन द काउंटिंग। समझ रहे हो, वो काउंटिंग पे डिपेंड कर रही है, नंबरिंग पे डिपेंड कर रही है, इसलिए वो क्या है, सर्टेन है। अब ऐसा थोड़ा नहीं 3 स्टूडेंट्स को बोल दिया, एक स्टूडेंट 18 बेंच काउंट करेगा, दूसरा 19 करेगा, तीसरा 13 करेगा, चौथा 14 करेगा, ऐसा थोड़ा नहीं होगा। अगर 20 टैक्स है तो 20 काउंट करेंगे सारे के सारे बच्चे। ठीक है, तो इसलिए जो काउंटेबल थिंग्स होती हैं, काउंटेबल मींस जो ऑब्जर्वेशंस काउंटेबिलिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है, वो हमेशा फिक्स रहेगी, वो हमेशा सर्टेन रहेगी, वो अनसर्टेन नहीं होगी, उसमें डाउटफुलनेस नील होगा। There is no doubt in that particular observation. Doubtful observations, uncertain observations कौन सी होती हैं? Which depends on experimental observations जो होती हैं। समझ रहे हो, मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंगली जो वैल्यूज हमारे पास ऑब्टेन होती हैं, वो सारी की सारी जहां पे हम एक पर्टिकुलर एपरेटस का यूज करते हुए ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, एक्सपेरिमेंटेशंस करते हैं, ठीक, वो जो ऑब्जर्वेशन होती है वो अनसर्टेन होती हैं। काउंटिंग के आधार पे जो ऑब्जर्वेशन हमारी आ रही है, जहां पे काउंटेबिलिटी है, वो ऑब्जर्वेशंस ऑलवेज सर्टेन ही होती हैं। क्या होती है? सर्टेन। ठीक है, दो तरह की ऑब्जर्वेशन, एक सर्टेन एक अनसर्टेन। अनसर्टेन कौन सी? जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन होती हैं, ठीक, जो इंस्ट्रूमेंट्स को यूज, अपरेटस को यूज करते हुए वॉल्यूम आइडेंटिफाई हो रहा है, ठीक है, लेंथ मेजर की जा रही है, समझ रहे हो, इस तरह की ऑब्जर्वेशंस वो अनसर्टेन रहती हैं, डाउटफुल होती हैं। लेकिन एक जो काउंटिंग के आधार पे जो ऑब्जर्वेशन आप ले रहे हो, नंबरिंग के आधार पे जो ऑब्जर्वेशंस आप ले रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, वो हमेशा फिक्स्ड होती हैं। ठीक, जैसे 1 डजन है तो 1 डजन ऑलवेज 12 ही होगा, वो काउंटिंग के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए वो सर्टेन है। दैट इज अ सर्टेन ऑब्जर्वेशन, दैट इज फिक्स्ड, जिसको हम बोले वो वाली चीज। नाउ रूल 5 आ जाइए। रूल 5 क्या है आपके पास? इफ द काउंटिंग नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जैसे 2 बॉल्स और 20x, अगर काउंटिंग नंबर्स हैं, द काउंटिंग नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, काउंटिंग नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, काउंटिंग नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर या हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स, उनके इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, have infinite significant numbers या significant figures। ठीक है जी, क्यों? Because these are exact numbers। ये क्या होते हैं? exact numbers होते हैं। जैसे मैंने अभी बोला ना कि जो काउंटेबिलिटी के ऊपर ऑब्जर्वेशंस डिपेंड करते हैं, वो सर्टेन होते हैं, मतलब फिक्स्ड होते हैं, या आप उनके एक वर्ड और बोल सकते हो, एग्जैक्ट नंबर्स होते हैं ये। ठीक है, having infinite significant figure as these are exact numbers, and अगर exact numbers है and can be represented by writing and can be represented by writing infinite number of zeros, by writing infinite number of zeros after placing a decimal,
after placing a decimal मीन्स उस केस में जब आपके पास एग्जैक्ट नंबर प्रेजेंट है तो उसको जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करते हो तो डेसिमल के बाद आप जितनी मर्जी जीरोस लगा सकते हो। वो आपको अभी हमने रूल किया है कि द जीरोस आफ्टर द डेसिमल और राइट साइड ऑफ अ नंबर दे आर कंसीडर्ड एज सिग्निफिकेंट। देन इफ यू कैन write the infinite number of zeros after decimal means to say that significant figures may also be or will also be infinite। उस केस में number of significant figures भी क्या हो जाएंगे, infinite हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए 2 balls ले रहे हो आप, 2 balls फॉर एग्जांपल या 20x ले ली आपने, ठीक है, या 12 नोटबुक्स ले ली, 12 पेन्स ले लिए फॉर एग्जांपल 12 पेन्स, ठीक है। अगर 12 पेन्स है तो इनको जब आप डेसिमल फॉर्म में लिखोगे, डेसिमल फॉर्म में जब हमने लिखना है तो इसको तो कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैन बी रिटन एज 12.0000 जितनी मर्जी जीरो लगा दो आप, डेसिमल फॉर्म में ऐसे लिखेंगे 12.00। अगर एक जीरो लगाएंगे तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे, अगर 2 जीरो लगाएंगे 4 5 6 इस तरह से जितनी मर्जी जीरो लगा दो वो सारी की सारी जीरोस क्या काउंट होंगी, सिग्निफिकेंट फिगर्स की फॉर्म में काउंट होंगी वो, ठीक है। इसी तरह से कोई भी ले लो, एनी वन, आप 10 ले लो, 5 ले लो, 7 ले लो, जब आप उसको डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे तो infinite number of significant figures will be obtained, but in case of exact numbers, in case of इसमें exact numbers के केस में these are exact numbers provided क्या होगा, infinite significant figures as these are exact numbers and can be represented by writing infinite number of zeros। जब डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो जितनी मर्जी जीरोस वहां पे लगा सकते हैं हम बेटा, ठीक है जी, हो जाएगा। और लास्ट रूल जो रूल नंबर 6 है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि इफ यू हैव अ साइंटिफिक नोटेशन, इफ यू हैव अ साइंटिफिक नोटेशन देन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बी गिवन बाय द वैल्यू ऑफ डिजिट नंबर। जो डिजिट नंबर होता है साइंटिफिक नोटेशन में कैपिटल N की वैल्यू जो होती है ये n into 10⁻n, ये वाली जो n वैल्यू है इसी से आपके पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स निकलेंगे। जो एक्सपोनेंट टर्म है दैट इज नॉट कंसीडर्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है बेटो। सो दिस इज ऑल अबाउट द सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड रूल्स फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है बेटो। ये आपका एक टॉपिक था। इसके बाद इसी का एक टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये तो हो गया ना, रूल हो गए। अब आपके पास मान लीजिए सब्ट्रैक्टिंग, आपके पास दो ऑब्जर्वेशन था, आपने सब्ट्रैक्ट करके आपसे पूछा गया कि आपका जो रिजल्ट आया उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, मल्टीप्लिकेशन यूज हो रही है, डिवीजन यूज हो रही है। वो तो मींस जब मैथमेटिकल ऑपरेशंस यूज करके हम लोगों ने रिजल्ट ऑब्टेन करना है, उस रिजल्ट में जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ अलग से रूल्स हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो थोड़ा सा छोटा सा वीडियो होगा, उसमें हम यही डिस्कस करेंगे, दैट इज हाउ द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंजेस बाय यूजिंग mathematical operations on two different numbers having different significant figures, ठीक है बेटा। सो वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल नाउ ये आपका सिग्निफिकेंट फिगर है, इसको अच्छी तरह से एक दो बार वीडियो को अच्छी तरह से एनालाइज करना है, ठीक, और आपका ये क्लियर हो जाएगा। 1 मार्क में बेटा क्वेश्चन जरूर आता है ये एमसीक्यू में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड, ठीक है। एक पार्ट ये हुआ है, अभी सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। ओके बेटा, ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर।